Good morning, students. Myself, Dr. Alpna Chaudhary. As we have discussed briefly all the tropical diseases in the previous video, now we will be studying each disease in detail. Cholera. They are the learning objects. Then, what is the cholera? It is an infectious disease that causes severe watery diarrhea, which can lead to dehydration and even death if untreated. It is caused by the eating food or drinking water contaminated with a bacterium called Vibrio cholerae. In this slide, you can easily see how it spreads. Treatment क्या है? So, what is the causative organism of cholera? Vibrio cholerae. Reservoir. Humans are the main reservoir of Vibrio cholerae. Other potential reservoirs are water. Vibrios grow easily in saline water and alkaline media. They survive at low temperatures but do not survive in acid media. Host age children's 10 साल 10x more susceptible than adults and elderly also higher susceptible. 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा susceptible हैं. सेक्स बोथ होता है, मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली ससेप्टेबल. इम्यूनिटी लेस इम्यूनिटी पेशेंट्स, द पेशेंट्स हु हैव लेस इम्यूनिटी वो जो है ज़्यादा हायर रिस्क पे होते हैं. जैसे जस्ट लाइक आजकल जो कोरोना है, जिस पेशेंट्स की इम्यूनिटी बहुत लो होगी उसको कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे. यही चीज़ हमारी कोलेरा में भी है कि इम्यूनिटी अगर लेस है तो वो बंदा हायर रिस्क पे है. एंड पीपल विथ लो गैस्ट्रिक एसिड लेवल. एपिडेमियोलॉजी. cholera was prevalent in the 18th century, but due to a proper treatment of sewage and drinking water has become rare in developed countries. Period of communicability. Infected persons can carry and transmit vibrios during 1 to 4 weeks. A small number of individuals can remain healthy carriers for 7 months. What is the incubation period? It is 6 hours to 5 days. 6 hours to 5 days. Incidence in 1 lakh population में 1 persons को ये होता है. Over 1 million cases and nearby 10,000 fatalize. Carriers and transmission. The reservoir is mainly human asymptomatic carriers, and patients carry huge quantities of vibrios in feces and in vomit. Up to 108 bacteria can be found in 1 ml of cholera liquid. बेटा इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1 ml का जो कोलेरा लिक्विड होगा, मतलब जिसमें कोलेरा का विब्रो कोलेरी होगी, मतलब 1 ml का जो कोलेरा लिक्विड होगा उसमें 108 जो है बैक्टीरिया पाए जाएंगे. इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय अ फीकल ओरल रूट. इफ इट इज ingested with water in infected dose, it should be higher. Or when it ingested with food, fever organisms are required to cause the disease. So, what is the main transmission? Is drinking contaminated water, eating raw or uncooked shellfish. ठीक है.
What is the pathophysiology of cholera? See this slide. Ingestion of Vibrio cholerae, ठीक है, हमने ले लिया. रेसिस्टेंस टू गैस्ट्रिक एसिड, देन उससे क्या होगा, कोलोनाइज हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन. देन विरुलेंस ऑफ नॉन टॉक्सिजेनिक विब्रो कॉलरी, वन स्ट्रेन्स नॉट वेल अंडरस्टूड. देन सिक्रीट इंट्रोटॉक्सिन. देन इंट्रोटॉक्सिन क्या करेगा, इंटेस्टाइनल सेल्स को बाइंड कर देगा, और क्या हो जाएगा उसमें, फिर जो क्लोराइड चैनल्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड बायोकार्बोनेट जो होते हैं वो रिलीज होने लगेंगे. फ्लूइड हाइपर सिक्रीशंस, उससे बढ़ जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, डायरिया. और इससे क्या हो जाएगा, जब डायरिया बहुत ज़्यादा होगा बेटा तो डिहाइड्रेशन. यू बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्लाइड. What are the signs and symptoms? See, most people remains asymptomatic. The symptoms of cholera include this profuse watery diarrhea, stomach pain, leg cramps, mild fever, vomiting, shrunken eyes and cheeks, dry mucous membranes, decreased urinary output. मेनली इसमें साइन एंड सिम्टम्स में तो स्टूल है ना बेटा, द राइज वॉटरी स्टूल, द स्टूल हैज़ टू करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस. सी दिस टाइप of rice watery stool, typical rice watery diarrhea. The stool has a characteristic appearance, a non-bilious, grey, slightly cloudy fluid with flecks of mucus, no blood, and a somewhat fishy inoffensive odor, and it is called as rice watery diarrhea. Clinical symptoms beta, parallel volume concentrated, postural hypotension होगा, weakness हो जाएगी, tachycardia and decrease skin trigger होगा, weakness होगी, absent pulse होंगे, shrunken eyes होंगे, washer woman skin होगी. What is the washer woman skin? मीन्स रिंकल्ड स्किन. पेशेंट जब बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया हो जाएगा तो वो कोमा में भी जा सकता है. व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? सीवियर डिहाइड्रेशन, शॉक, रीनल फेल्योर, डेथ. कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड रीनल फेल्योर बेटा, ड्यू टू एक्यूट. क्यों हो रहा है रीनल फेल्योर? ड्यू टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. मसल क्रैम्प्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. ठीक है, इस बिल्कुल इस चीज़ को हमें पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए हर चीज़ की, कि ये चीज़ क्यों हो रही है. रिस्क फैक्टर्स, पुअर सैनिटरी कंडीशंस. इसमें क्या है, रेयर इन डेवलप्ड कंट्रीज, कॉमन इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका. रॉ और अंडर कुक्ड फूड, कंटामिनेटेड सी फूड इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज, स्पेशली सेलफिश. हाइपोक्लोरहाइड्रिया मीन क्या होता है ये? हाइपोक्लोरहाइड्रिया मीन्स बेटा होता है स्टेट वेयर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक सिक्रीशन ऑफ द स्टमक एंड अदर डाइजेस्टिव organs is absent or low respectively. It is associated with the various other medical problems. इसमें क्या क्या है बेटा? पीपल विथ लो लेवल ऑफ स्टमक एसिड्स, बताया था ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सच एज चिल्ड्रेन,
older adults and some medications. And type of blood. इसमें टाइप ऑफ ब्लड में बेटा रीजंस आर नॉट इंटरली क्लियरिफाई. देन रिस्क फैक्टर्स में ये भी आ सकता है, पुअर सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, प्रिकैरियस लिविंग कंडीशंस एसोसिएट विद इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी देखी जाए, पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिस, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, internally displaced or refugee camps or slum populations, inhabitants of rural areas particularly along rivers and lake shores, disasters had took place. Ab now we are coming to laboratory diagnosis. सबसे पहले लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम ये पढ़ते हैं कि हम जो लैब में जो स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं वो कैसा होना चाहिए. सो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन फॉर लैब डायग्नोसिस, स्टूल शुड बी कलेक्टेड आइदर बाय कलेक्टिंग अ स्वैब फ्रॉम अ फ्रेशली पास्ड स्टूल स्पेसिमेन, जिसमें कि जो फ्रेश स्टूल होता है शुड बी लेस देन 1 आवर ओल्ड. 1 घंटे से भी पहले मतलब कम टाइम पीरियड का स्टूल जो होता है पास, वो हमें मेनली कोशिश करना चाहिए कि हम उसको जो है लैब डायग्नोसिस के लिए भेजें. और फ्रॉम अ स्वैब ऑफ अ रेक्टल कंटेंट्स उसको भेजें. दिस आर कॉल्ड एज द रेक्टल स्वैब. सो लैब डायग्नोसिस में अब हम ब्लड कल्चर भी कर रहे हैं. विब्रस ऑफन डिटेक्टेड बाय डार्क फील्ड और फेस कॉन्ट्रास्ट, माइक्रोस्कोपी ऑफ स्टूल. Organisms are motile, appearing like shooting stars. Microscopy show sheets of curved gram-negative rods. When plated on sucrose dishes, yellow colonies appears, confirming cholera present. But when you are in final year, when you are in writing POM laboratory diagnosis, तो सिर्फ ब्लड कल्चर लिखने से काम नहीं चलेगा. उस डिज़ीज़ के बारे में, उस बैक्टीरिया के बारे में जो एक चीज़ बिल्कुल क्लेरिफाई करे कि ये चीज़ आनी चाहिए, तो वो चीज़ उसमें उस क्वेश्चन के आंसर में, उस ब्लड कल्चर में, उस लैब डायग्नोसिस में वो चीज़ ज़रूर मेंशन करोगे, देन यू गॉट मार्क्स. अब एडिशनल मेथड ऑफ डिटेक्शन इंक्लूड PCR एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड स्टूल टेस्ट. Confirmation of 10 to 20 stool samples in sufficient samples can be taken using different methods: filter paper, Carey Blair medium, or rapid tests. Rapid tests can give a quick confirmation of a cholera diagnosis. However, rapid tests do not provide information on antibiotic sensitivity or can they be used for biotyping and therefore must always be followed by sample. Beta, if you have any doubt, then drop a comment in comment box. It will be resolved in upcoming video or in next video. See this the chart. असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स विद डायरिया फॉर डिहाइड्रेशन. ये WHO का क्लासिफिकेशन से बेस्ड है बेटा. इसमें देखिए इसका जर्नल अपीयरेंस, पेशेंट जब आता है डिहाइड्रेशन के केस में तो उसको कैसे हम असेस्ट करते हैं कि अगर वो बहुत मतलब उसको परसेंटेज देंगे, उस परसेंटेज के हिसाब से हम ये देखते हैं कि इसका डिहाइड्रेशन लेवल कितना है. तो अगर वो वेल अलर्ट है, उसका जर्नल अपीयरेंस वेल है, वो प्रॉपर तरीके से आंसर दे रहा है, अलर्ट है और उसकी आइज़ नॉर्मल हैं, वो नॉर्मल तरीके से मतलब नींद जैसी नहीं है, एकदम नॉर्मल आइज़ है, शंकन नहीं है, प्यास क्या है, नॉर्मल पानी पी रहा है, बहुत ज़्यादा थर्स्टी नहीं है, और स्किन पिंच मतलब हल्का सा आप स्किन को पिंच करोगे तो तुरंत वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाती है. ठीक है,
इसके अलावा अगर जो है पेशेंट को कोई बात पूछेंगे तो वो जो है पेशेंट हैज़ नो डिहाइड्रेशन। अब तो इससे क्या होगा कि हाँ उसको जो है 5% से कम है तो वो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको डिहाइड्रेशन नहीं है। सम डिहाइड्रेशन जो 5 से 10% में हम उसको लाते हैं वो बहुत रेस्टलेस होता है, इरिटेबल होता है, आई शंकन होती है, थर्स्टी होता है, ड्रिंक्स गर्ली जल्दी पानी पीता है एंड गोज़ बैक स्लोली। स्किन को पिंच किएंगे तो पहले तो तुरंत वापस आ जा रही थी विद इन अ सेकेंड, बट अब क्या है 2 सेकेंड्स टाइम जो है वो ले रही है। इसके बाद जो है सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या है कि वो पेशेंट आएगा तो बिल्कुल जैसे उसको दो लोग पकड़ के लेकर के आएंगे, बहुत लेथार्जी, थका हुआ रहेगा, आइज शंकन रहेंगी और ड्रिंक्स पुअरली और अनेबल टू ड्रिंक, पानी नहीं पीना पसंद करेगा, पी नहीं पाएगा। और स्किन को पिंच करेंगे तो वो जो है 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेगी अपने रिकवरी स्टेज में वापस आने के लिए। तो इस तरीके से बेटा हम असिस्ट करते हैं कि जो डायरिया के कारण जो है पेशेंट कितना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है। इसमें जब हमने ये हो गया, हमने उसको असेस कर दिया, हमने लैब डायग्नोसिस की, तो उसका लेबोरेटरी टेस्ट का मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं हम लेबोरेटरी टेस्ट, व्हाट आर द रोल ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट इन कॉलेरा? बिकॉज ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्मेशन। जब तक बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्मेशन नहीं होगा तो हम कैसे मानेंगे? सो बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्मेशन इज कंपल्सरी ऑन द फर्स्ट सस्पेक्टेड केस इन ऑर्डर टू कन्फर्म, एक तो कन्फर्म कोलरा के लिए, सेकेंड आइडेंटिफाई द स्ट्रेन, बायोटाइप एंड सीरोटाइप्स, ताकि हम आगे उसको ट्रीटमेंट दे सकें, एंड असेस एंटीबायोटिक ससेबिलिटी। व्हाट आर द ट्रीटमेंट इज आवर होम्योपैथिक थेरेपेटिक्स, बट इसके साथ हम ORS देंगे। What are the prevention? Basic health education and hygiene provision of safe water and sanitation, comprehensive multidisciplinary approach। क्या होता है बेटा मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच? इन ग्रेट डिटेल, वाइड रेंज, टेकिंग इन अ नंबर ऑफ फील्ड्स ऑफ नॉलेज वेइंग, ठीक है, वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, दिस आर द कॉलेरा अलर्ट। इसमें क्लियरली डिफाइंड पिक्चर की हाउ कॉलेरा इज स्प्रेड एंड हाउ कॉलेरा इज प्रिवेंटेड। Now we are briefly study about cholera gravis. More severe symptoms: rapid loss of body fluids, produce 10 to 20 liters, rapidly lose more than 10% of body weight, dehydration and shocks, patient's skin turning a bluish grey hue from extreme loss of fluids, death within 12 hours, 12 hours, death can occur within 2 to 3 hours। कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, ये मैं इसलिए बेटा आपको क्लेरिफाई कर रही हूँ। सेकेंड इज कोलेरा सिका। कोलेरा सिका इज एन ओल्ड टर्म डिस्क्राइबिंग अ रेयर सीवियर फॉर्म ऑफ कोलेरा दैट अकर इन अ एपिडेमिक कोलेरा। द फॉर्म ऑफ कोलेरा मैनिफेस्ट्स as ileum and abdominal distension from massive outpouring of fluid and electrolyte into dilated intestinal loops। मोर्टेलिटी रेट बेटा इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई है। नाउ कोलेरा इन चिल्ड्रेन। ब्रेस्ट फीड इन्फेंट्स आर प्रोटेक्टेड। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे रहते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। Symptoms are severe and fever is frequent. Shock, drowsiness and coma are common. Hypoglycemia is a recognized complications which may lead to convulsions. Rotavirus infection may give similar picture and need to be excluded. What is the prognosis? The prognosis of cholera.
can range depending on the severity of the dehydration and how quickly the patient is given and responds to treatments. Death. What is the mortality rate? Mortality rates in untreated cholera can be as high as 50 to 60% during large outbreaks, but can be reduced to about 1% if treatment protocols can rapidly into an action. 50 to 60% ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो जो है ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं. अगर उसमें हम 1% भी ट्रीटमेंट ले लेंगे तो उसकी जो स्पीड रिकवरी की ज़्यादा फास्ट होगी. कंट्रोलिंग कॉलरा कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? अपने जो है ट्रीटमेंट सेंटर्स बने हैं हमारे, सेट अप ट्रीटमेंट सेंटर्स फ्रॉम प्रॉपर ट्रीटमेंट. सैनिटरी मेजर्स के क्या हैं? फूड सेफ्टी एंड एनिमल हेल्थ मेजर्स. बाहर का खाना नहीं खाएंगे, स्ट्रीट फूड्स नहीं खाएंगे. कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस डाटा. अडॉप्ट टू ईच सिचुएशंस फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच. Prevention and control of cholera outbreaks, WHO policy and recommendations. Main tools for cholera control क्या है? Proper and timely case management in cholera treatment centers. Specific training from proper case management including avoidance of nosocomial infections. ये चीज़ बेटा आप मैनेजमेंट पार्ट में भी लिख सकते हो. जो ये WHO की रिकमेंडेशंस हैं ये हमारे मैनेजमेंट पार्ट में भी है. Sufficient prepositions medical supplies for case management और improved access of water, effective sanitations, proper water management, vector control, enhanced hygiene and food safety practice, improved communication and public information. All about cholera. There's a key messages just for recall. Cholera is an acute dry-leg disease that can kill within an hour if untreated. There are 1 lakh to 1 lakh There are 1 lakh deaths due to cholera every year, of which only a small proportions are reported to WHO. About 75% of people infected with Vibrio cholerae or 139 do not develop any symptoms. Cholera is preventable disease provided then safe water and proper sanitation are made available. These are the references. Thank you, students. If you have any query, then you can contact me on my phone number. The future topic will be continued in next lecture. Please update. Okay, thank you, students.